Hello, sir. So, Hello students, good morning all. Good morning, sir. Sir, will you be covering up content today or questions? आयुष Yes, sir. आज कंटेंट का एवरीथिंग इज डन ना, कुछ बाकी था क्या? class illustration 3 का I think थोड़ा बाकी था. Yep. क्लास Yep, यस sir. यस यस हाँ. And sir, मेरा ना वो बस एक्सरसाइज 4 का सॉल्यूशंस I think अशोक had to send. अगर वो मिल गया तो पूरा मैं पीडीएफ बना के ग्रुप पे भेज दूंगा सब सॉल्यूशंस का. ओके अशोक अशोक यस अशोक हाँ देयर अशोक इज नॉट देयर क्या? Hello, sir. यस अशोक हाँ. I'm not Ashok, sir. I had a doubt. ओके वन मिनट रुक जाओ अशोक इज अशोक देयर? I will send it today. ओके अशोक विल सेंड. So then I'll send it on the group as soon as I get it. So I'll do. ओके ओके हरी हाँ. हरी बाकी हो गया है क्या पूरा? वेरी गुड. हाँ बाकी सब मिल गया. ओके ओके गाइस हाँ कुछ डाउट था किसी का क्या था?
Yes, sir. Last class that was in chapter 2, question 5, the velocity, we weren't getting the solution for the velocity part. The force, no, the pressure part we got. The tube on a horizontal table, the tube is curved. That question. In that, Jayashankar pointed out that we consider a streamline to apply Bernoulli's principle, right? So in the other examples that we did, the aeroplane example, the roof example, we considered pressure outside the window and inside the window. We considered pressure above the plane, below the plane. There too, we didn't consider any streamline. So all those examples are also wrong, right? Right? Because there to apply pressure inversely proportional to velocity, we need to consider a streamline according to Bernoulli. So ये वाला example you have seen, जो इसका But there was solution no जो thing passing through the window, right? नहीं, you have seen the fifth one. In chapter 2, question 5, the reason that we gave. नहीं, उसका solution I have given. Yeah, मैंने भेजा था उसी दिन same day. Have you seen? Acha, no sir, I'll check it out. Yeah. Thank you, sir. ठीक है. तो guys, क्या कहाँ तक हो गया था? So 1.320 हो गया था लास्ट क्लास. यार एक वो बाकी था, क्या बोलते हैं, जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं साइफन करके, तो ठीक है वाला भी कर लेते हैं. साइफन एक वाला टर्म 1 मिनट सर, वो आप बोर्ड को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, 1 मिनट. थैंक यू सर. तो साइफन का बेंचरीमीटर, ask me which you have doubt in, which one benchymeter you have doubt again, which one, which part? तो बेंचीमीटर का कौन सा वाला? Ask me which you had sent it out. Yeah, benchymeter में which one is it out? ask me क्या डाउट था बेंचीमीटर में? किसी का डाउट था? किसका डाउट था? So the people lesson class, I think she's not here. She's not. Manvi, you're saying something? क्या? Please tell again. I don't think she's in class. Like she hasn't joined the lecture. Sir. Yes. So actually, I have a doubt in benchymeter. Can you please explain the bit of it again? Okay. Like, you know, can you tell the diagram? What was the diagram? You have the notes. Notes you have, Asmi, you have notes. Can you tell the diagram of benchymeter? Sir, just a minute. So, there was a doubt I'll ask you at the end of the lecture. उसके बाद I also have another lecture. You can ask now. Continue. What is the doubt? So actually, there was a sum. I'll find it and send it to you. Okay. Or you note the sum. You can ask me in the doubt lecture also. Okay.
एक और सब इसमें पढ़ाते हैं ये वाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो साइफन करते हैं। साइफन में क्या यूज होता है, कैन एनीबडी टेल इसका? साइफन का यूज लिक्विड्स फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल को ट्रांसफर करने के लिए। ओके, नहीं हायर से लोअर, हायर से लोअर, सॉरी हायर से लोअर। हायर ऐसा है। अशोक, अशोक कैन यू टेल द डायग्राम इसका कैसा होगा, कैसा है ये ऐसा और ये ठीक है ऐसा पाइप ऐसा, और यहाँ पे कहीं लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा है लिक्विड, ठीक है। अब इसमें जो है सपोज वैल्यू ये जो सेम लेवल हो गया ना, this is H1 और ये वाला H2, ठीक है, H1 और ये H2। तो गाइस यहाँ पर जो है हमें ये वाला एनालिसिस करना है इसमें। हाँ, तो इसमें से ये वाला पाइप, ऑब्वियसली ये वाला पाइप क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, तभी तो लिक्विड जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये लिक्विड ऐसे ये खाली हो जाएगा, लेवल नीचे आता रहेगा ना, ये लेवल नीचे आता रहेगा, वजह से लिक्विड जाता रहेगा। एंड इसका एरिया काफी बड़ा दिया हुआ है, ए इज मच ग्रेटर देन, इसका स्मॉल ए ले लेते हैं, तो ठीक है। अब गाइस इसमें जो है ये लिक्विड, यही लिक्विड ऐसा जा रहा है अपन को कैसा, जा रहा है ऑलमोस्ट, इसको ठीक है यहीं पे ले लेते हैं, ऑलमोस्ट सरफेस पे ऐसा ले लेते हैं। तो पॉइंट्स पहले मार्क करते हैं बर्नौलिस के लिए। क्या बर्नौलिस के लिए जो है पॉइंट कैसे मार्क करोगे इसमें बताओ। ये वाला पॉइंट को कुछ 1 कर लेते हैं, इसको 1, और तो लेवल कम होगा गाइस। हाँ, और ये एंटर करने से पहले 0.2, फिर एंटर करने के बाद पाइप में एंटर करने के बाद उस पॉइंट को 3 मार्क कर, लेट अस मार्क ये वाला पॉइंट 4, इसको कुछ 5 मार्क कर लो, और ये बाहर निकलने के बाद 6, जस्ट बाहर। गाइस ये वाला पॉइंट्स क्लियर है क्या, क्या क्या मार्क किया हमने ना। पॉइंट 1 कौन सा है पॉइंट है, लिक्विड की सरफेस वाला। पॉइंट 2 कहाँ पर है, जस्ट बिफोर एंटरिंग, just entering the pipe, जस्ट बिफोर एंटरिंग द पाइप। हाँ, और पॉइंट 3 कहाँ पर है, just after entering the pipe. यस, हाँ, पॉइंट 4 The same level as 1, right? क्या क्या सेम, हाँ इसको सेम लेवल ही ले रहे हैं, ये जो है ना ऑलमोस्ट सेम लेवल ले रहे हैं, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। इसमें जो है, हाँ, जैसे यहाँ पानी तो अंदर चला गया, जैसे तो पानी जैसे अंदर जा रहा है यहाँ से V3 V4 V5 और यहाँ V6, तो एक कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे, क्या इक्वेशन आएगा, 1 सब पॉइंट्स की कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्या इक्वेशन आएगा, सभी पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1, हाँ, A1 मतलब कैपिटल ए, कैपिटल ए, Yes, sir. Capital A into B1 is equal to small a into small a, cross section of the pipe. अभी भी ये इंटर कहाँ किया है, So between which point? So A into V2. A कैपिटल A into V2, तो V1 equal to V2 आ जाएगा। तारो बैटरी लो है। हाँ, AV3 Someone's mic is on.
स्मॉल ए वी, हाँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V4 हाँ, AV4 AV5 इज इक्वल टू AV6। ठीक है, तो अब ये बताओ कि इसमें जो है किसकी वेलोसिटी कम आएगी? Sir, I'm having a doubt. हाँ, Sir, how can V4 be equal to V5 be equal to V6? The fluid is in a pipe and it will be accelerating downwards, right? नहीं, एनर्जीज के टर्म्स में देखो ना, एनर्जी कम हो जाएगी ना उसकी। तीन एनर्जीज है, प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल। Sir, but मतलब कंटिन्यूटी एरिया फेल ऑफ हो क्रॉस सेक्शन तो सेम है। तो अगर हम सिर्फ लास्ट के 4 टर्म्स कंसिडर करें और अगर हम उनमें सब में स्मॉल ए कैंसिल कर दें तो V3 इक्वल टू V4 इक्वल टू V5 इक्वल टू V6 आएगा। जाएगी। यस, तो सर ऐसा तो ट्रू है नहीं, क्योंकि सर जब पाइप हम छोड़ देते हैं तो जैसे जैसे पानी नीचे आएगा तो ज्यादा फ्लो से बहेगा, राइट? पाइप हम छोड़ देते हैं कब? जब एयर में। No, sir. If a pipe is just kept like that, because when we are using a siphon, it is released, नहीं right? The pipe. नहीं नहीं, हम तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी वैलिड रहेगा कि कंटिन्यूटी से जो है मास जितना एंटर कर रहा है उतना ही मास बाहर जाना चाहिए। तो कंटिन्यूटी में तो ये रॉन्ग हो ही नहीं सकता। बाकी जो है प्रेशर और दूसरी एनर्जीज में वेरिएंस आएगा, Okay, sir. है ना? तो तो इससे हमें, हाँ, तो आपने 6 पॉइंट का क्रॉस सेक्शन कैसे डिसाइड किया? कॉज वो तो पाइप के बाहर चला गया है ना। पाइप के जस्ट बाहर निकलने के बाद। अच्छा, ओके सर। ना सर आपने 1 2 3 4 5 6 को एक ही स्ट्रीम लाइन माना है ना? हाँ, मतलब यही ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, करेक्ट। ओके सर, क्योंकि फिर मास कंटिन्यूटी एक ही स्ट्रीम लाइन पे है। हाँ, मतलब यही वाला मास फिर ऐसा अपन बोल रहे हैं ना, ऐसा ये पानी लेवल ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। यस, समझा समझा। चलो, इसके बाद क्या रखेंगे यहाँ पर? बर्नौलीज इक्वेशन। इसमें हाँ, ये इक्वल आ जाएंगे ना। कौन कौन सा इक्वल आ जाएगा? V3 इज इक्वल टू क्या क्या आएगा यहाँ पर? V3 equal to V4 equal to V5 equal to V6. V3 इक्वल टू V4 इक्वल टू V5 इक्वल टू V6 की सम वैल्यू V0, कुछ वैल्यू है हमारी। तो इस पाइप में जो है स्पीड से, ये तो यहाँ तक तो आ गया। V1 V2 के बारे में क्या होगा अगर ये V0 है? V1 V2 क्या होंगे? In the container. AY V0. Small a V naught by capital A. Yes, sir. स्मॉल ए V0 बाय कैपिटल ए होंगे ना, ये वाले V1 V2। और ये काफी छोटे होंगे, नेग्लिजिबल। बिकॉज ये है ना, ये वाला कंडीशन रखा है ना, ये टेंडिंग टू 0, ये टेंडिंग टू 0। ठीक है गाइस, यहाँ तक किसी को डाउट? दर्शन, क्या डाउट है? स्ट्रीमलाइंस नहीं, यही वाला फ्लूइड है ना, देखो यहाँ से ही कम हो रहा है, कम हो कैसे जा रहा है? इधर के पानी थोड़ी है, ये वाले कम हो जा सर आपने सारे इक्वल वेलोसिटीज को वी नॉट कहा। रहा है। हाँ यार, ये वाला जो पाइप के अंदर है ना, उसको V0 बोला है। ओके सर। अब जो है यार, हाँ, I have a doubt that सिक्स वाले के लिए आपने जस्ट बाहर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने पाइप के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इक्वल लिया। तो सेकंड हाँ, वाले जस्ट पॉइंट 2 के लिए भी वैसा क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए आपने कैपिटल ए क्यों लिया? उसके लिए भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते क्योंकि वो पाइप के जस्ट बाहर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इक्वल होगा। नहीं, अरे यहाँ से जो है लिक्विड, ये पूरे से लिक्विड जाएंगे ना, जैसे ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि इतना ही लिक्विड यहाँ से घुसेगा। ये लेवल जब कम होगा तो पूरा कम होगा ना, राइट? अरे जब पानी अच्छा, इसलिए पूरा एरिया लेंगे। हाँ भाई, ये बताओ, जब पानी का लेवल कम होगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहीं का लेवल कम होगा, यहाँ का वैसे रह जाएगा, पूरा कम होगा ना। अच्छा, ओके सर, समझ गया। थैंक यू सर।
इसके बाद कैसे करना चाहिए ये बताओ। अब ये जो है हाउ विल यू कैलकुलेट वी नॉट यार, वी नॉट कैलकुलेट करने का कोई तरीका बताओ मुझे। बर्नौलीस लगाना है। प्लीज एक बार बताओगे कि 0.2 एग्जैक्टली कहाँ है? 0.2 जो है, जो साइफन का पाइप है उसके बाहर है। ओके सर, जस्ट डाउन राइट? यस हाँ। ओके थैंक यू। अब यार मुझे वी नॉट कैलकुलेट करने का मेथड बताओ। तो बर्नौली राइट। बर्नौली ठीक है। बर्नौली किन दो पॉइंट्स के बीच पे लगाऊं? 1 and 6। 1 and 6। ओके एक मिनट, 1 and 6 के बीच में बोल रहे हो ना, ठीक है। तो 1 and 6 P1 प्लस P1 प्लस क्या आएगा यार, ये वाला 2/2 V1 स्क्वायर प्लस रो जी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है 6 1 and 6 बोल रहे हो। P6 प्लस सर 1 and 5 के बीच में सेम रेफरेंस लाइन होगा तो वो भी ले सकते। एक मिनट जाओ, ये कर लेते हैं पहले, फिर वाला स्क्वायर, फिर क्या बोल रहे हो, ये वाला V6 स्क्वायर प्लस रो जी X। हाँ फिर उसके बाद इसमें 1 and 6 के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको लेंगे रेफरेंस लाइन? सर कैसे भी ले ली सकते हैं। किसको लेना है जय? और सर 6 को। तो 6 को लेना चाहते हैं, इसको रेफरेंस लाइन दे रहे हो। तो किसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा, इसका जो है कम हो जाएगा। सर प्रेशर्स भी कैंसिल हो जाएंगे। एक जब इसका तो क्या है यहाँ से। अब जो है भाई प्रेशर बताओ यार, 1 का 6, हाँ हाँ ये एटमॉस्फेरिक करेक्ट, ये भी both कैंसिल हो equal. जाएगा। और then you can cancel the row once you get them down. एक मिनट, इसका पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चला गया? इसका पोटेंशियल एनर्जी रोटी H1 है। अब ये वाला वेलोसिटी ऐसे ही छोटा है यार, इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे लाके लिखोगे इसको, फिर इसको लिखना a स्क्वायर बाई, ऐसे लिखेंगे ना इसको, a स्क्वायर बाई कैपिटल A स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, फिर बी नॉट स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इसको हटा सकते हो, या फिर यहीं से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। somebody is messaging, क्या जिया, what is the message? सर एक बार वो एक्सप्लेन करेंगे P1 और P6 को आपने कैसे कट किया? P1 और P6 जो है, हाँ किसने बताया था यार, कैसे कट किया था बताओ फिर से। Atmospheric Atmosphere. P1 is atmosphere, 6 is atmosphere। ओके सर, चलो ठीक है, ये यहाँ तक तो आ गया। तो यार इसको यहीं कट कर देते ना, तो ये ठीक रहता ना, इतना सारा ये हो रहा है। हाँ अब जो है पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसको रेफरेंस लाइन लिया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? H1। ओके ठीक है, H1 रो जी H1 2/2 V नॉट स्क्वायर। तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? √2GH1। ये तो आ गई √2GH1, √2GH1 ही आ गया ना। ओके तो मतलब सरफेस लेवल से जितना नीचे है उतनी वेलोसिटी। हाँ सरफेस लेवल से जितना नीचे उतनी वेलोसिटी। ओके सो अगर बर्नौलीज लेट अस अप्लाई बिटवीन 4 एंड, चलो देख करके देखते हैं, 4 और 6 के बीच में करते हैं। ये तो किसके बीच में किया था? 1 और 6 के। somebody tell me 4 और 6 के बीच में कैसे लिखेंगे? सर आपने V1 स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल किया क्योंकि वो टेंडिंग टू 0 था। V1 वाला V1 0, V1 ऐसे ही छोटा है, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, या हाँ, ऐसे कर सकते हो, या फिर इधर लाकर V1 स्क्वायर माइनस है ना 2/2 कॉमन लेंगे, V नॉट स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, फिर A स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ऐसे भी कट जाता। हाँ यस सर, थैंक यू। अब यार मुझे 1 and 4 में बताओ। वन एंड 4 का बर्नौलीज इक्वेशन बताओ क्या आएगा? P1 प्लस 2/2 V1 स्क्वायर
नहीं 1 and 4 नहीं, ये 6 and 4 लेते हैं। चलो 4 and 6 P4 1 plus rho V4 square plus rho G H4 P6 plus। सर हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें? एक मिनट रुक जाओ, डिस्कस करते हैं ना। जयशंकर का एक पॉइंट डिस्कस करना है, एक रुक जाओ। यहाँ तक तो ये वेलोसिटी तो आ गई ना, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, दिस इज हाउ दे कैलकुलेट द वेलोसिटी। लेकिन एक और पॉइंट उसने रेस किया था, वो डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो 4 और 6 के बीच में बर्नौली लगाते हो तो कौन सा टर्म हट जाएगा? वेलोसिटी। तो रो बाय 2 v4 स्क्वायर इक्वल टू रो बाय 2 v6। जब पहले तो पोटेंशियल एनर्जी हटाओ, जय ने बोला ठीक है ये वाला। हाँ, अब कौन सा हटा रहे हो? रो बाय ये वाला। चलो ठीक है। P6 का प्रेशर क्या है? P0 ना। ओके, अब 4 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? रो जी H1 प्लस H2। रो जी H1 प्लस H। तो इससे 4 का जो है कितना आएगा प्रेशर? P0 माइनस रो जी क्या आना चाहिए? H1 प्लस H2 ना, ये वाला। यस सर। यस सर। यस सर। जयशंकर सी, अगर जैसे यू आर सेइंग ना कि जैसे जैसे यहाँ वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी अगर सेम है, 3 टर्म्स का सम है भाई, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। अगर ये वाला टर्म कांस्टेंट है तो वेरिएशन इन दोनों में हो रहा है ना। तो दैट मीन्स हाइट अगर ये वाला ऊपर है तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। यस सर, गॉट इट। Sir, since 1 and 4 का area is different, we can't use Bernoulli there, right? Or we can still use. Like sir, like pressure के लिए सिर्फ pressure at 4 के लिए can we use like normal rho g H2? प्रेशर एट 4 के लिए हाँ, नहीं, ये तो taking 1 as मूविंग reference फ्लूइड है line. ना, ये तो मूविंग फ्लूइड है। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है। स्पीड अगर कम होता तो हम ठीक है रो जी एच वाला यूज कर लेते हैं, अगर मूविंग फ्लूइड है, ज्यादा स्पीड है तो नहीं। अच्छा हाँ, वो तो स्टैटिक्स के लिए होता है। गॉट इट सर। हाँ, अब जो है ठीक है, तो जयशंकर ये वाला यहाँ से कंडीशन अराइव कर सकते हैं एज योर पॉइंट यू सेड। क्या कंडीशन होगा? P4 कम होते जाएगा, ऊपर वाला कम होके कितना हो सकता है? सो P0। यस, ये वाला जो है कम होके जो है ये डिक्रीज करते जाएगा भाई। ये वाला नेगेटिव नहीं होगा यार प्रेशर, है ना। सो दैट मीन्स क्या लिख सकते हो यहाँ पर इससे वैल्यू कि H1 प्लस ये जो है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ना। P4 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या लिख सकते हैं यार? ये वाला P0 must be greater than rho g H1 plus H2. तो P0 by rho g क्या हो जाएगा? H1 plus H2, ऐसा आएगा ना। So H1 plus H2 must be less than P0 by rho g। ठीक है ना ये वाला? तो आपने P4 निकाला क्यों? क्या रीजन था? नहीं, वो पूछ रहा था ना कि सर वेलोसिटी सेम कैसे हो, सेम होगा तो फिर बाकी सब चीजें कैसे चेंज हो रही हैं, क्यों ना। मैंने बोला कि कंटिन्यूटी ये इंश्योर कर रहा है कि भाई मास कहीं पे भी क्रिएट डिस्ट्रॉय पाइल अप नहीं हो रहा, तो उससे वेलोसिटी सेम हो गई। वेलोसिटी सेम हो गई तो ही आस्क्ड कि फिर चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे मैंने शो किया कि भाई ठीक है, अगर बर्नौली में 3 टर्म्स होते हैं तो उसमें से इफ दिस टर्म इज नॉट चेंजिंग भाई, तो ये 2 टर्म्स चेंज होंगे, राइट। जहाँ पे ये ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर कम होते जाएगा, व्हिच इज बीइंग शोन हियर। बेसिकली हम इसे प्रूफ क्या करना चाहते हैं? नहीं, उसका एक डाउट था कि जो है कि भाई जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है यहाँ मूविंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो हमने बोला स्पीड अगर कांस्टेंट है तो चेंजेस इसमें आ रहे हैं भाई, पी और रो जी एच मिलके चेंज हो रहे हैं लोग।
प्रेशर एनर्जी और ये चेंज और इससे ये भी हमने इंश्योर कर लिया कि साइफन के लिए क्या क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट। पहला डेटा, साइफन के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। साइफन के लिए आपका जो है H1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब इसका माउथ इसके टॉप लेवल से ऑब्वियसली नीचे होना चाहिए। और दूसरा H1 प्लस H2 मस्ट बी लेस देन P0/ρg। और ये ज्यादा हो गया, ज्यादा भी अगर ये बड़ा हो गया H2 काफी बड़ा हो गया तो क्या होगा, तब भी साइफन वर्क नहीं करेगा। So what if H1 increases like H2 constant रखा but H2 constant रखा और H1 को increase करते गए तो फिर भी नहीं होगा possible after a certain limit। तो यू आर सेइंग कि जो है ओहो ये बहुत ज्यादा हो गया ऐसा। हाँ तो ये काफी ज्यादा हो गया तो फिर अगेन फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर प्रेशर नेगेटिव आने की चांसेस आ जाएंगे। ओके सर। तो दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब आपने P4 को एज अ फंक्शन ऑफ H1 एंड H2 निकाला है ना? करेक्ट। इससे हमने ये भी इंश्योर कर लिया कि P4 की जो प्रेशर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए यार। ओके धीरे से तो ज्यादा ही होना चाहिए और जैसे से ऊपर जा रहे हैं प्रेशर जो है कम हो जाएगा। Jay understood this one? Sorry, Jay Shankar. Yes sir. Yes sir, I got it. So guys, ये वाला आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं ये वाला। Sir, should I take a screenshot of this since this is extra? हाँ नहीं ले लो ना इसको, जो है एक पैसेज की तरह तो आ सकता है डेफिनेटली ये। All right, sure sir. एक पॉसिबिलिटी तो है। Guys, everybody understood ये वाला? किसी को डाउट है क्या? प्लीज आस्क। Okay, Jatin, no doubt. Manvi, understood this one? Yes sir. Okay. चलो ठीक है भाई। फिर जो है यार एक मैंने 319 क्लास में कराया था इसलिए मैंने स्किप किया था, किसी ने मैसेज किया था मुझे। चलो क्लास इलस्ट्रेशन में आते हैं। गाइस मैंने 319 क्लास इलस्ट्रेशन में मतलब एग्जांपल्स में मतलब ये लिया था क्लास में। हाँ सर, क्लास एग्जांपल्स का था वो, इसलिए मैंने वो स्किप किया था। हाँ इसका मैसेज था। So can you wait for a second? I have to just note it down. ओके हाँ गाइस, जिसका इसका ये वाला हो गया है। हाँ Sir, is this liquid flowing out by itself or anything is pulling it? तो एक्चुअली देखा जाए तो क्या हो रहा है, श्रेयांश देखो ऊपर जाते रहे प्रेशर कम होते जा रहा है ना। Yes sir. ऊपर कम होते जा रहा है, एटमॉस्फेयर है इधर से तो एटमॉस्फेयर उसको प्रेस कर रहा है, इधर प्रेशर कम होते जा रहा है तो ये ऐसा मूव होते जा रहा है। तो मतलब खुद ही फ्लो कर रहा है ऑन इट्स ओन। यस, और बेसिकली जो है एनर्जी कंजर्वेशन तो है क्योंकि देखो उसका माउथ जो ओपनिंग है ऑलवेज सरफेस से तो नीचे ही है। यस सर। सर बट जब हम कोई साइफन यूज करते हैं तब सबसे पहले हमें एक मतलब जीरो हेड ऑफ प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है एंड में, तो उसके बाद वहां पर लिक्विड फ्लो करने लगता है, राइट सर? साइफन में जैसे हम वैसे करते थे ना कुछ, जैसे आपने देखा होगा मैकेनिक्स जो है बाइक से पेट्रोल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ रखा और थोड़ा सा इसको खींच देते हैं ना, पुल करते हैं, सक जैसा करते हैं, राइट? हाँ सर, सब करते थोड़ा सा थोड़ा सक करते हैं तो क्या होगा, लो सक करने से लो प्रेशर जैसे क्रिएट होता है। एक बार ये चालू हो गया और इसका ये आउटलेट नीचे है तो कंटिन्यूअसली सक पेट्रोल टैंक खाली होता रहता है। यस सर, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आउटलेट नीचे होने से क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, अगर मान लो ये वाला पॉइंट ऊपर कर दिए तो दैट मींस यू आर एबल टू ट्रांसफर दिस होल लिक्विड टू सम सर्टेन हाइट। मतलब आप जो है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करवा रहे हो। कैसे, किसके एक्सपेंस से आ रही है? यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं खाली हो रहा है तो इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी में स्पीड से निकलते जा रहा है। यस सर। है ना? हेलो सर। एनर्जी को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। यस देवेश। हाँ सर, आपने H1 ग्रेटर देन 0 इसलिए बोला ना क्योंकि V0 इज ग्रेटर देन 0। हाँ सर मतलब V0 0 नहीं होना चाहिए। यस, फिर तो साइफन का वर्किंग नहीं हो रहा है। ओके सर। ठीक है,
हाँ, Aiden understood this one? Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट करो गाइस। अब 1.320 हो गया था क्या? 1.321 320 हो गया, सॉरी Sir, 1.321। I had some doubts in the booklet, so will you solve them today after the class? बुकलेट का जो है So अपन can you please solve? which one? Sir, I am having a doubt in class illustration 3, sir. क्लास इलेक्शन 3 में डाउट है। ओके ओके, ये कौन सा वाला 1.321? Yes, sir, that one. ओके ओके गाइस, जय Sir, वाला अपन booklet- करते हैं ना। हाँ, एट द एंड आई विल ट्राई टू हिंट, या फिर अपने पास डाउट लेक्चर है तो उसमें भी कर लेंगे। हाँ, ओके सर। ओके सर पहले आप एक्सरसाइज 4 डिस्कस कर लीजिएगा, 4 और 5 डाउट लेक्चर में। ओके ठीक है ठीक है गाइस, जल्दी से 1.321 करो। इट्स अ वेरी टफ सम। सर एचसीवी डिस्कशन कब होगा? एचसीवी यार देखते हैं अपने पास, लेकिन गाइस टीडब्ल्यूटी के लिए ठीक है, जितना होता है उतना ही करो। पर नेक्स्ट वीक भी है ना अपने पास, बिफोर एमटी। यस, बिफोर एमटी विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके। हाँ चलो, अभी 1.321 ट्राई करो। आयुष, कैन आई रेज दिस वन? Yes, sir. प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। हाँ Done, sir. I have taken. So 1.321, guys, who can explain me? Can you give 3-4 minutes to attempt? Yes, sir. I will draw a diagram for myself. 1.321. Ashok, have you done this sound? Yes, sir. Okay, you got this one? Okay. What is clearance exactly? Clearance मतलब जैसे जो है, जैसे मान लो सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इसके ऊपर रखा ना, तो ये गैप, दो उसके बीच का ऐसा दो गैप। हाँ जो ओके सर। 1 मिनट गाइस, एक मैं ऑब्जेक्ट लिया।
तो गाइस ये वाला इसका कैसे करेंगे यहाँ पर? सर पहले कंटिन्यूटी लगाएंगे। So first we'll conserve mass. देखो एक मिनट, ये ऐसा, ये ऑब्जेक्ट है, बीच में देयर इज ओरिफिस और ये ऐसा है मान लो। हाँ गाइस, श्रेयांश देखो गैप मतलब ये है ना, दोनों के बीच का गैप। हाँ देखो ये जो है दिस इज अ मैनहोल और इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है ना। अब इसमें पानी जाएगा तो कैसे जाएगा? इधर से आएगा ना, साइड से। यस सर। और गैप है इनके बीच में, ऐसा छोटा सा गैप है। ये क्लियरेंस कितने का है? दिस क्लियरेंस इज टी। हाँ जो भी है, ठीक है, ओके। सो अब ये जो ऐसा है तो हाँ कैसे पहला इक्वेशन क्या आएगा यार, इसमें बताओ कैसे करेंगे यहाँ पर? सर कंटिन्यूटी। सर कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी लगाना है, ठीक है भाई। सो कंटिन्यूटी जो है ये ऐसा, यहाँ पे सिलेंडर है ये वाला। तो वेलोसिटी जो है वो इस मतलब ये जो, और ये बाहर क्या है, पानी है ना बाहर, ऐसा पूरा। यस सर। ओके, तो अब इक्वेशन हमें लगानी है यहाँ पर। तो यहाँ से जो पानी बाहर गिर रहा है, बाहर जो ऑरिफिस से बाहर आ रहा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जो पूरा मैनहोल से जो पानी यहाँ पे गिर रहा है बाहर नीचे, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? V1। हाँ मतलब उसके लिए हम ऐसा सोच सकते हैं ना, पूरा पूरा एक बड़ा सा कंटेनर। हाँ एक बड़ा सा कंटेनर और बीच में यहाँ पे कुछ है ही ऐसा वैसा, और फाइनली जो यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी उसकी? √2gh। √2gh ना। अरे बाहर का तो बहुत बड़ा है और ये आपका होल से पानी निकल रहा है, तो मैनहोल से जस्ट बाहर निकलने के बाद वेलोसिटी विल बी, Sir, h0 is the height of the fluid, right? It is the height of the fluid, total height. यहाँ तक So it किसी को will be डाउट? h0, right? h0 है क्या? तो ये जो है हाँ √2g h0। हाँ, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। चलो सर कैन यू रिपीट √2gh कैसा है? √2gh, हाँ देखो यहाँ पर कैसा है, ये 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 क्या दिया है, ये आपके पास एक मैनहोल है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा है और बाहर पूरा पानी भरा हुआ है सर, राइट? बाहर पानी भरा हुआ और बाहर Sorry पानी sir, है it's और not h0, it's h, sir. Sorry. H। हाँ अब जो है ये बड़ा सा, ये तो बड़ा सा है, बड़ा सा टैंक है ये पूरा। एक देखो कैसा है, एक बड़ा सा टैंक, एक बड़ा सा टैंक, फिर उसमें वहां पर मैनहोल पे एक सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है। ये ऐसा है ना डायग्राम? हाँ सर। सिलेंडर बड़ा है वो मैनहोल के इससे। अरे ये जो कंटेनर है जहाँ पर वो पूरा पानी है, वो तो जो है वो तो काफी बड़ा है। और वो सिलेंडर का रेडियस वो कंटेनर के रेडियस से बड़ा है। नहीं देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो वाइड वेसल है, सिलेंडर है और होल है। विच इज वाइड वेसल? दिस इज वाइड वेसल। Yes, sir. The radius of the cylinder is bigger than the radius of the wide vessel. It's given in the question. नहीं, radius of cylinder is greater than the radius of the अरे wide vessel is not Full. given. Wide vessel is not given at all. Oh, sorry, Wide sorry, sorry, sir, sorry, sir. Sir, wide vessel we are considering it to be, I mean, और to if be इससे बड़ा, very. मैं confused हो गया, sorry, sir. हाँ वाइड वेसल इज वेरी लार्ज। तो उस लार्ज वेसल से अब यहाँ से जो पानी आ रहा है, यहाँ से जो पानी गिर रहा है बाहर, उसके लिए वेलोसिटी तो √2gh होगा ना, न्यूटन रिफ्लेक्स सॉलिसिस लॉ से। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब जो है यस ऑरिफिस के जैसा। हाँ अब जो है हमें, तो हमें बाहर का मिल गया, अब यहाँ पर आना है, ठीक है, ये डायग्राम तो हो गया। अब इस डायग्राम में आते हैं, यहाँ पर ये जो मैनहोल है जिसमें से पानी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है और इसके ऊपर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर, ठीक है, और ये पूरा सरफेस तो है ही। यहाँ पर पानी का फ्लो कैसा होगा गाइस? यहाँ पर पानी का फ्लो रेडियली होगा अंदर, हाँ रेडियली इनवर्ड्स। Yes, sir. तो ये वाला ऐसा आ गया भाई, ऐसा पानी का फ्लो है, ये स्ट्रीमलाइंस हो गई। और ये वाला पॉइंट 1 ले लेते हैं, जस्ट बाहर निकलने के बाद P1 √2gh। पॉइंट 2 यहाँ पे लेते हैं एट सम रेडियल डिस्टेंस r।
एट रेडियल डिस्टेंस r। ये अब देखो रेडियल डिस्टेंस r, तो हम लगाएंगे कंटिन्यूटी। करने का इक्वेशन क्या जाएगा, ये वाला a1 v1 इक्वल टू, ये जो यहाँ पे a2 बोल देते हैं, a2 v2। a1 इज द, इसका जो होल है मैन होल, उसका रेडियस कितना गिवन है, R1 कैपिटल R1 सर पॉइंट टू एज एट रेडियल डिस्टेंस r, राइट? क्या क्या पॉइंट टू, सर इट्स स्मॉल एट r, अ right? डिस्टेंस r। यस यस, स्मॉल r, जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट हमने ले लिया है ना। अब देखो Okay, sir. पानी ऐसा आ रहा है रेडियली, ऐसे आ रहा है, तो पानी इस सिलेंडर से, सिलेंडर के कौन से सरफेस से एंटर करेगा, सभी चारों तरफ से पानी एंटर करेगा ना, गैप। अरे जो गैप बनेगा भाई यहाँ पर, वो जो गैप होगा वो भी तो इसी शेप का होगा ना गैप। यस सर। यस सर। उसका एरिया क्या होगा, कौन से सरफेस से पानी एंटर करेगा, उसके पाई r2 स्क्वायर। लैटरल सरफेस। पानी तो ऐसे जाएगा ना रेडियल, 2 pi r1 2 पाई r इनटू गैप। ओके ओके सर बट वो तो हम एक ही स्ट्रीमलाइन के लिए 2 पाई r और r2 स्क्वायर थोड़ी होगा, r2 r2 की। नहीं जय, हमने तो जो हमने क्या लिखा, जो पानी है ऐसे लिखा ना, जो जो मैनहोल से बाहर आ रहा है ना, जस्ट बाहर यहाँ से गिरने वाला है पानी, यहाँ से जो गिरने वाला पानी है, तो यहाँ से जो गिरने वाला पानी है वो एंट्रेंस किधर से होगा, इस साइड से तो होगा, उसकी इस साइड से। यस सर। तो उसका एरिया क्या होगा, ये वाला उसका एरिया, पानी तो उसके इस साइड से एंटर कर रहा है लैटरल सरफेस एरिया से, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई r इनटू ये क्लियरेंस की। सर बट हो सकता तो अलग अलग स्ट्रीमलाइन है ना, एक ही स्ट्रीमलाइन थोड़ी है वो पूरा। नहीं, जैसे वही पानी तो ऐसे आ रही है, और ये पानी जो है यहाँ पर, यहाँ से जो आया वही फिर इधर से निकल रहा है बाहर, वही पानी तो यहाँ से कलेक्टिवली टेकिंग ऑल द स्ट्रीमलाइंस। हाँ, यही वाला पानी इधर से आके ऐसे निकल रहा है, हाँ कलेक्टिवली लिया। ओके सर। और ये v1 की वैल्यू ये है a2 क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू t इंटू v2। तो यहाँ से जयशंकर अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. It is because the whole we are considering V1 as a whole element which is entering laterally. So it will be area into thickness into the perimeter. Yes. Sir, can so वो smaller होना चाहिए ना, 2 pi small r into t. Yeah, 2 pi small r. Yes, हाँ. No, so V1 के साथ में जो है, V1 के साथ तो कैपिटल R1 होगा। R1 होगा ना, यहाँ से जो मैनहोल का रेडियस है भाई। ओके सो सॉरी सर, मैं आया सर मेरे को V2 में 2 pi r t कैसे आया वो? 2 pi r t, अरे देखो ना, अब जो है, अब ये V2 मतलब कौन सा, थोड़ा बड़ा वाला रेडियस है ना, R रेडियस वाला। अब R रेडियस में भी देखो ये R है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये लेंथ, इसको ये सर्कमफ्रेंस का लेंथ, और ये गैप वही ना 2 pi r। तो इससे V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? सर कैन यू प्लीज रिपीट व्हिच इज 0.2? 0.2 नहीं, हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड क्या पूछा है, फाइंड द स्टैटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द क्लियरेंस एट एज अ फंक्शन ऑफ सम स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस। यस सर। तो अब 2 पॉइंट्स लिए हैं भाई, ये वाला पॉइंट तो जस्ट यहाँ से जब पानी मैनहोल पे जब गिरेगा, ये वाला पॉइंट, हाँ यहाँ से ये वाला पॉइंट, यस सर, R1 रेडियस का हो गया, और दूसरा वाला पॉइंट एट डिस्टेंस r लिया है ना, स्मॉल r, जो उन्होंने बोला है निकालो कि एक्सिस से r डिस्टेंस के पॉइंट पे। सर so r is not necessarily the radius, right? r is जनरल पॉइंट, यहाँ एक्सिस जनरल पॉइंट, एज अ फंक्शन ऑफ r निकालना है। ओके ओके सर। तो यहाँ से कितना जाएगा, ये वाला r स्मॉल ये कैपिटल R1 बाय स्मॉल r V1। ओके, ये तो हो गया आपका कंटिन्यूटी।
बर्नौलीज का इक्वेशन क्या आएगा? सर P1 plus rho by 2 V1 square equals P2 plus rho by 2 V2 square. पोटेंशियल एनर्जी सर वो तो इक्वल ही रहेगा, सेम लाइन. So because clearance is negligible. तो दे आर ऑन द सेम लेवल. इसी को ही रेफरेंस लाइन लेंगे, इसी को रेफरेंस लाइन लेंगे तो ये और ये पोटेंशियल एनर्जी H0 हो जाएगी. 1 का प्रेशर, जस्ट 1 का प्रेशर मतलब यहाँ से बाहर आ गया, कितना होगा 1 पे प्रेशर? P0. 2/2 V1 कहाँ चला गया है? तो ये है V1. हाँ, V1 विल बी √2GH. P2 निकालना है भाई, प्रेशर एट रेडियल डिस्टेंस R निकालना है. और ये V2 स्क्वायर, ये वाला. हाँ, V2 स्क्वायर. सर V2 0 हो जाएगा ना, V2 स्क्वायर. नो, V2 इज सम R. V2 0 नहीं होगा. मतलब दो चीज शायद, आई गेस यू आर गेटिंग मिक्सिंग अप. एक तो ये जो है V2 जो है ना, ये जो है ऐसे यहाँ पर है. V1 कौन सा है? जस्ट यहाँ से बाहर निकल रहा है, जब बाहर नीचे गिर रहा है. और V2 तो इधर है ना, जनरल इस साइड. हमने तो इसके ऊपर जो है ये जो वेसल है, वाइड वेसल. अच्छा, ओके सर. वहाँ के टॉप साइड पे से वेलोसिटी 0 होगी. यस सर, समझा. यार इसको सॉल्व करो, फिर क्या आता है देखो. इसको इधर भेज के इधर कुछ करो. हाँ, so P2 equals P0 plus rho GH into 1 minus R1 by R square. माइनस R1 by R whole square. Yes sir. ये थोड़ा विजुलाइजेशन में थोड़ा सा टफ है. पानी का फ्लो थोड़ा सा ये. हाँ, आप पॉइंट टू का बता सकते हो आपने एरिया टू कैसे लिया? तो देखो इसमें जो है गाइस, जिसका इसका हो गया, दे कैन प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट सम में चले जाओ. देखो क्या दिया है इसके ऊपर. देखो पूरा वाइड वेसल है ना, और जो है ये ऐसा. तो पॉइंट 1 कौन सा लिया हमने? ये वाला पॉइंट, जस्ट यहाँ से जब पानी जब बाहर गिरने वाला है, यहाँ से पानी जब बाहर गिरने वाला है. और पॉइंट 2 क्या लिया? यहाँ से R डिस्टेंस. तो पॉइंट जो है अभी कहाँ, पानी कहाँ, बीच में कहीं है. हाँ, तो पानी कहीं, देखो ये जो है ये क्या हो जाएगा इसका, मान लो ये जो ओरिफिस हो गया, यहाँ कहीं पॉइंट ले लिया मैंने. तो ये वाला पॉइंट मान लो 1 बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट 2 है ना. ये वाला जो है R और ये वाला R1. यस सर. अब इसको इधर आ जाते हैं, ये ऐसा है ना. अब ये पॉइंट्स पे कैसे निकालेंगे एरिया? एरिया निकालना है ना. पानी का एंट्री कैसा है? लैटरल सरफेस में. लैटरल मतलब ये वाला. तो ये एरिया कैसे निकाला जाएगा? ये वाला क्लियरेंस दिया हुआ है T. So sir, all water molecules at a distance of R from the axis will have the same velocity because आपने A2 into V2 में पूरा ही lateral एरिया लिया ना. नहीं तो R वेरी कर जाएगा ना लैटरल के लिए. थिकनेस क्लियरेंस सेम रहेगा, लेकिन भाई देखो ना, अंदर वाले के लिए R1 होगा, बाहर वाले के लिए कहीं R1 चेंज होते जाएगा. जहां से पानी गिर रहा होगा उसके लिए रेडियस R1, फिर बीच वाले कहीं पॉइंट के लिए स्मॉल r, और एक्सट्रीम वाला पॉइंट के लिए R2 का रेडियस. हाँ सर, बट समझो मतलब लाइक जो भी मॉलिक्यूल्स आर डिस्टेंस पे होंगे, लाइक कोई भी एक जनरल मॉलिक्यूल आर डिस्टेंस पे होंगे, तो एक सर्कल में जितने भी होंगे सबका वेलोसिटी सेम होगा क्या? एग्जैक्टली यस. सब अच्छा, पानी ओके सब सर. पानी जो है मैनहोल में, इस डायग्राम में देखो, तो इस मैनहोल में पानी, जैसे बारिश में जो पानी होता है मैनहोल में, पानी सब साइड से आ रहे हैं, राइट. So basically the point V1 is just outside the hole. Yes. जस्ट यहाँ पे जब गिर रहा है ये, हाँ, जैसे यहाँ से फॉल होने वाला है. And sir, some people were asking about some streamlines thing. I was not able to understand that. What was that? नहीं, जय क्या बोल रहा था कि आपने पूरे को, जैसे पूरे को ले लिया है क्या, मैंने पूरे सभी को क्लब कर लिया है. यस, क्योंकि हमने बोला कि जो है कंटिन्यूटी के लिए क्या लिखते हैं, एरिया इंटू V1 ना. तो जो भी पानी हम बोलेंगे इस मैनहोल में जो गिरने वाला है, वो पानी जो है इस बड़े वाले से पास होके आएगा, राइट. इससे यहाँ जो गिरने वाला है वो ऑब्वियसली इधर से पास होके आएगा, तभी तो गिरेगा.
राइट, जितना इधर से पास होके जा रहा होगा इसके लैटरल सरफेस से वही फिर। अच्छा सर, मतलब आपने पूरा ही लिया है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास करना है। सर आपने वो इक्वल टू P2 में वो V1 कैसे एलिमिनेट किया? किसमें नेगलेक्ट किया? लास्ट इक्वेशन। वो V1 नेगलेक्ट नहीं किया, उसने जय ने आंसर लाया। क्या किया था तुमने इसमें? नेगलेक्ट कहाँ किया? नेगलेक्ट नहीं, सिंपलीफाई कैसे किया उसके? V1 को 2gh डाल दिया, √2gh। उसने ऐसे लिखा है, ये शायद ऐसे लिखा होगा, V1² बाहर ले लिया और फिर इसने जो है ऐसे लाया। हाँ सर। और फिर इसने सॉरी सर, मैंने गलती कर दिया, सॉरी। ओके, हाँ, V1² को उसने √2gh डाल दिया। मेरा मिस्टेक सर, सॉरी। ओके, हाँ, ये वाला। जल्दी नेक्स्ट 1.322। सर 2 मिनट। ओके। Ayush taken the screenshot? So, sir, if you want, I can take it since we are solving. I was. तो इसका भी ले लो ना, ये तो टफ। Sure, sir. Sure. Yeah. Next is 1.322. देवेश, ये वाला आया ना? इसको कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. Okay. I will erase this sum. यार इसके लिए कैसे करेंगे ये वाला? सर हाइट को नेग्लिजिबल मान के बर्नौलीज इक्वेशन। टाइम टी भी तो इन्वॉल्व है ना, टाइम टी के लिए कैसे करेंगे? तो पहले प्रेशर टी तो कांस्टेंट दिया हुआ है वो लोग ने कि वो टाइम में करना है। सर वो ठीक है सर, बट मतलब अगर प्रेशर पता चल गया हमें बर्नौलीज इक्वेशन से, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं और उससे फिर
यहाँ तो वेलोसिटी निकल जाएगी तो देन वी कैन यूज आई थिंक काइनेमेटिक इक्वेशन तो t टाइम में डिस्प्लेसमेंट और फिर फोर्स आई थिंक ये सब। नहीं, कैपिटल V इक्वल एस वी टू टी हो जाएगा, V2 बर्नौली से आ जाएगा। SV2 हाँ फिर सर इससे V2 मिल जाएगा VL बाय एस टी। V2 आ जाएगा VL/ST। हाँ हाँ सर, अभी बर्नौली इक्वेशन में V2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। फोर्स प्रेशर मिल जाएगा उससे, फोर्स एंड देन F into L will be the वर्क डन। बर्नौलीज इक्वेशन आप लगा रहे हो किसकी के बीच में, 1 और 2 के बीच में। हाँ सर, P1 plus rho by 2 V1 square P2 plus। सर आपने VL by SL equal to V2 कैसे लिख दिया? ये ST होना चाहिए। ओके सर। ये VL/ST और ये क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। हाँ फिर इसमें 1 का प्रेशर सर P2 is P0 and P1 is P0 plus P। 1 is हाँ भाई, इसका इक्विलिब्रियम लिखो, इसका इक्विलिब्रियम न्यूटन सेकंड लॉ से क्या आएगा इस पे साइड, कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन F0 प्लस P0A इज इक्वल टू P1A कैपिटल ए। हाँ उसका क्या इक्वेशन बैठेगा यहाँ पर, F0 प्लस P0A इज इक्वल टू P1A। Newton's law of forces balanced, P1 is F0 by A। हाँ ये जय, you are saying this one। हाँ सर, P1 is P0 plus P pressure due to the force। हाँ, और F by हाँ, and V1 is almost zero, negligible V1। तो रेफरेंस लाइन लेंगे तो ये गया, V1 नेग्लिजिबल है। यस सर, तो P इक्वल टू और रो बाय 2 V2 स्क्वायर आ जाएगा, F0 by इक्वल टू रो बाय 2 V2 स्क्वायर। How do we know that the piston is in equilibrium? Oh, this is constant velocity से मूव करता है। constant velocity, acceleration 0। तो ये velocity आएगी। हाँ फिर velocity आने के बाद सर V2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो we'll get an equation in we'll get the equation for the force। एक मिनट, ये आ गया F0 by A is equal to रो बाय 2 into V2 स्क्वायर, तो V2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। V2 स्क्वायर ये वाली वैल्यू। यस सर। VL स्क्वायर by S स्क्वायर P स्क्वायर। यस सर। फोर्स आ गया तो अभी वर्क विल बी F0 into L। एक मिनट जाओ, रो A by 2 VL स्क्वायर by S स्क्वायर T स्क्वायर। हाँ अब वर्क डन will be F0 into L। force into displacement। V by ST into L। A into L is VL। सर और L equal to VL by और VL A into L is VL। ओके ओके सर। सर अपने V1 नेगलेक्ट किया, अभी तो सेंडिंग टू V1 हाँ कंटिन्यूटी से क्या लिखोगे, कैपिटल A into V1। हाँ सर समझ गया कैपिटल जय, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं ना, वर्क नहीं फिर हम वर्क डन बाय फोर्स
प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर। अब इस पूरे सिस्टम को देखते हैं। इनिशियल तो गया, अब इस साइड से जो एटमॉस्फेयर का वर्क डन हो रहा है, एटमॉस्फेयर फोर्स इधर से लग रहा है, एटमॉस्फेयर फोर्स इधर से भी लग रहा है, पी नॉट डी ना। यस सर। यस सर। तो एटमॉस्फेयर का इधर से अगर पॉजिटिव है तो इधर से नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एफ नॉट इज जस्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ मास इनटू स्पीड स्क्वायर। मास कितना होगा इसका? रो इनटू वीएल इनटू स्पीड स्क्वायर। ऐसा भी तो हो सकता है ना भैया? Yes, sir. How did you cancel work done by P naught? तो पी नॉट देखो, ये पूरा सिस्टम ले लिया भाई, ये पूरा जो यहाँ पर ये पिस्टन पानी पूरा, हाँ। तो इधर से जो एटमॉस्फेयर का वर्क डन हो रहा है और इधर से जो एटमॉस्फेयर का वर्क डन हो रहा है सेम, इक्वल एंड अपोजिट। पर इसको पॉजिटिव में गिनोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। So, but how equal? The area is different, right? तो ठीक है, तो क्या लिखोगे? हाउ इंटीग्रल क्या लिखोगे? पी नॉट। ओके, एक मिनट। इंटीग्रल पी नॉट कैपिटल ए इंटू एल। Yes, sir. हाँ, तो इंटीग्रल पी नॉट कैपिटल ए इंटू एल, और इधर से क्या जाएगा? इंटीग्रल ऑफ, मतलब माइनस होगा, माइनस पी नॉट। हाँ, और ये मान लो ऐसा, ये पूरा इस शेप में पानी बाहर आ रहा है ना, इस शेप में बाहर आ रहा है। पी नॉट एस इंटू ये वाला लेंथ। Yes, sir. तो अब एरिया इंटू लेंथ ए इंटू एल, और यहाँ पे एस इंटू जो L1 है L2 है, सेम होगा। Yes, sir. Yes, sir. Got it. सर आपने ऊपर फर्स्ट मेथड में आपने ऐसे बोला कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, तो ये सेकंड, मतलब सेकंड मेथड में भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? ओ ये वाला, ये काफी स्लो है ना, और यहाँ पे जो निकल रहा है स्पीड है। अच्छा सर, मतलब बाहर आ रहा है, आप वो वाला केस ले रहे हैं? यस यस, हाँ उसी पे लगा। अच्छा ओके सर। आपने पिस्टन प्लस पूरा लिक्विड सिस्टम लिया है ना? यस, पिस्टन मासलेस, इसका यूज ही नहीं हो रहा। थ्री टू टू, अब 3-2-3 ट्राई करना है नेक्स्ट गाइस। हेलो सर। यस, हाँ। हमने थ्रस्ट फोर्स क्यों नहीं कंसिडर किया यहाँ पे? कौन सा वाला फोर्स? ये वाला थ्रस्ट फोर्स? नहीं, ये तो हम मतलब जो या इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से होंगे, है ना? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम। तो बाकी सब तो इंटरनल हो गए, इनके बीच का जो भी है। तो यहाँ पर एफ नॉट लग रहा है, यहाँ पे पी नॉट इंटू ए लग रहा है, और इधर से पी नॉट इंटू ए वाला वही फोर्स लेंगे ना। ओके, सो आपने सिर्फ पिस्टन पे फोर्सेस इक्वेट किए हैं? हाँ, मतलब जो मैंने, नहीं, वर्किंग थ्योरम जो लगाया है ना, यू आर आस्किंग फॉर वर्किंग थ्योरम की कौन सा यू आर आस्किंग? सर फर्स्ट मेथड। हाँ सर, वो ये वाला कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम, पिस्टन कांस्टेंट वेलोसिटी नेट तो 0, तो पिस्टन पे लगने वाले फोर्सेस ऑन द एक्टिंग। ओके सर, अंडरस्टूड। वर्किंग थ्योरम, अरे वर्किंग थ्योरम तो यही होगा ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है ना, इनिशियली ये बहुत स्लो, मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, हाँ, मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट रही है, सब रेस्ट पे थे। फाइनल और फोर्सेस क्या क्या है? एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट है, और पी नॉट वाला एटमॉस्फेयर वाला। तो एटमॉस्फेयर का इस साइड से मतलब जितना पॉजिटिव होगा, दूसरे साइड से उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला कट गया, बचा यही निकालना था, और उसको क्या बोला? हाफ
मास इंटू स्पीड स्क्वायर, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और स्पीड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया। एक और बार आप समझाएंगे कि पी नॉट जो राइट साइड से वर्क कर रहा है वो कैसे इक्वल हुआ जो लेफ्ट साइड से है? अब देखो ये बताओ कि यहाँ पे पी नॉट का वर्क डन कैसे लिखो, इस साइड इंटीग्रल ऑफ पी नॉट कैपिटल ए इंटू डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा। यस सर। पी नॉट ए एल आ जाएगा ये वाला। हाँ, अब यहाँ से जो पानी निकलेगा वो इसी शेप का निकलेगा। हाँ, इसी शेप का निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा पी नॉट एस और ये वाला डी एस। हाँ, मतलब पी नॉट एरिया इंटू ये वाला dx। और ये dx का लेंथ मान लो ये ऐसा निकला और ये L2 निकला, तो ये L2 जो है आप लिख सकते हो माई पी नॉट एस L2। तो यहाँ पर और A इंटू एल इज S इंटू L2, वॉल्यूम सेम ही होगा। यस सर। ओके सर। So can we skip 1.323? 1.323 सेम है क्या? Yes sir, it's same as ओके वाला स्किप करो, जल्दी जाओ नेक्स्ट पे 1.324। 1.324 1.324। गाइस हाँ थोड़ा सा टफ है, डोंट कुछ लोग शायद कम हो गए, स्ट्रेंथ कम दिख रहा है, 187 दिख रहा है, 185। तो गाइस थोड़ा सा टफ है, डोंट वरी, बट यू हैव डन एक्सरसाइज 1 2 3 4 तो, और एचसीवी भी किया है, तो वो काफी है, ये काफी टफ सम्स है। Okay guys, can I erase this one? Okay. Sir, which column are they talking about at the end? 1.323 क्या? 1.324. 1.324। Okay, इसका डायग्राम जरा सी। सर उसमें मतलब जैसे एक रोटेटिंग फ्लूइड जो हमने लिया था वैसे ही होगा सर, तो उसमें वेरिएशन कर पाएंगे ना, प्रेशर वेरिएशन। डायग्राम नेक्स्ट पेज पे दिया है। ओ डायग्राम नेक्स्ट पेज पे दिया है 1.86। Shankar, you are I guess Torricelli's equation के वक्त you have asked कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बर्नौलीज थ्योरम, राइट? Sir, I didn't get you. Like just somebody else asked you or something. हाँ, यहाँ पर जो है यहाँ पर अप्लाई किया था, इसका वेलोसिटी भी √2gh हम ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं। If we take points, this has 1 and this has 2. अब first you can say continuity से क्या मिल जाएगा, small a v2 capital A v1 is equal to small a v2, v1 is equal to a by a v2 ऐसे लिख सकते हैं। कर रहे हैं आप? तो ये टॉरिसेलीस इक्वेशन एक बार फिर से डिराइव कर रहे हैं। टॉरिसेलीस इक्वेशन, अब 1 पे वेलोसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी।
यस सर। ये स्ट्रीमलाइन से जानी है, ये स्ट्रीमलाइंस का बंडल ट्यूब ऑफ फ्लो मिलके बाहर से आएगा। अब वन और अब देखो ये यहाँ सबकी पॉइंट्स की वेलोसिटी बहुत कम है यार, सब वेलोसिटी बहुत कम है, एरिया काफी बड़ा है, तुमने अप्लाई बर्नौलीज दे रहा। इसको रेफरेंस लाइन लेंगे, रेफरेंस लाइन लोगे उसको तो क्या हो जाएगा, और ये जस्ट थोड़ा ऊपर ही है, हाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं ऊपर ये, तो H2 ये हटा लेते हैं। 0.1 का प्रेशर अभी, 0.2 का तो ठीक है बाहर है, 0.1 का प्रेशर, वेलोसिटी काफी कम है तो ऑलमोस्ट स्टैटिक्स ले सकते हैं, स्टैटिक्स का फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। वेलोसिटी में ज्यादा वेलोसिटी इज वेरी, V1 इज पॉइंट का प्रेशर, कैन राइट एज V0 प्लस ρgh। V1 तो छोटा है ही, इज दिस ओके? गाइस ये वाला प्रूफ? यस सर। ओके ठीक है भाई, अब ये वाला ट्राई करके बताओ 1.324। सर ये क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। तो नो, ये वाला टॉरसल इक्वेशन हमने पॉइंट्स ये और ये लिए थे, उसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट लेके अब जो है हमने डिराइव किया अनदर प्रूफ, समझ जाएगा। स्ट्रीमलाइंस में और एक डिफरेंट पॉइंट ले लिया है, R2GH। तो हरी इसको कैसे करोगे? So first we'll write Bernoulli's equations. Okay, Bernoulli equations. Okay, Bernoulli equation. It is an कैलकुलस यूज करना होगा। सर सबसे पहले मैंने स्टैटिक प्रेशर का इक्वेशन लिख दिया रोटेटिंग में सर। तो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 L स्क्वायर माइनस H माइनस L का होल स्क्वायर। एक मिनट जाओ, स्टैटिक के लिए पहले, स्टैटिक के लिए लिखने से पहले यू हैव टू टेल दैट यहाँ की वेलोसिटी जो यहाँ बाहर आ रहा होगा वो वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कम होगी, राइट? यस सर, ये तो अजम्पशन लेना ही पड़ेगा। ओके, अब फिर पॉइंट्स, इस पॉइंट को तुमने 1 लिया, The orifice is 2. orifice के जस्ट अंदर, हाँ 1 and 2 में स्टैटिक प्रेशर का रिलेशन क्या है? P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 L स्क्वायर माइनस H माइनस L होल स्क्वायर। और सर हम लोग स्टैटिक का कैसे लगा सकते हैं? स्टैटिक का क्यों लगा सकते हैं बताओ शंकर? सर सबसे पहले हम लोग एरिया देखेंगे, तो एरिया जो होगा 2 पे वो बहुत स्मॉल है सर, तो वहां पर वेलोसिटी बहुत हाई होगी, और 1 का उसके कंपैरिजन में एरिया काफी बड़ा है तो उसकी वेलोसिटी बहुत स्मॉल होगी सर। देखो व्हाट इज सेइंग, टोटल 3 पॉइंट्स लिए गए, एक पॉइंट तो ये वाला, एक पॉइंट जस्ट इनसाइड द होल, होल के अंदर, हाँ होल के अंदर dx डिस्टेंस पहले, और एक बाहर v3 जो निकालना है। अब कंटिन्यूटी से हम बोलेंगे कैपिटल A v1 इज इक्वल टू कैपिटल A v2 इज इक्वल टू स्मॉल a v3। यस सर। नाउ फ्रॉम दिस यू कैन से v1 इज इक्वल टू v2, बट हाँ v1 इक्वल टू v2 इज इक्वल टू a बाई जो रहेगा a बाई a इंटू, यस सर। एंड दे हैव इसमें जो है ऑरिफिस का साइज काफी छोटा है, स्मॉल, वेरी स्मॉल ऑरिफिस, सो v1 इक्वल टू v2 इज नेग्लिजिबल। ठीक है ना? चलो
अच्छा सर, तो क्योंकि वो बहुत स्मॉल है आपने फ्लूइड को स्टैटिक ही समझ लिया। तो यहाँ पे स्टैटिक ले लिया, तो स्टैटिक का इक्वेशन लिखा। ओके इसका रेडियस कितना होगा, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर होता है फॉर्मूला। r2 कितना हो सर जाएगा? सर सबसे पहले हमको एक dr एलिमेंट लेना पड़ेगा, राइट? नहीं, जैसे इसमें आ जाएगा ना, देखो ये वाला ऐसे लिखा हमारा, इस इक्वेशन से भी आ जाएगा। तो ये P2 और P1 तो ये तुमने निकाल लिया, इज दिस ओके? एंड P1 इज बेसिकली P0। गाइस ये वाला मैं इरेज कर लूं, ये वाला पार्ट, तो दिस इज इक्वेशन वाला। So P2 will be P0, right? Not P1. P2 is inside, P3 will be P0। यहाँ पे even So P1 will also be P0, right? Yes, Open है Okay, sorry sir. Oh, tube is open. Guys, ये वाला मैं इरेज कर लूं। Yes sir. Yes sir. और जो है अब हाँ, Sir, अब but बर्नौली but से isn't the proof, sorry to interrupt, but isn't the proof similar to Bernoulli's principle? हाँ सेम उसी जैसे यार है। अब जो है, अब पॉइंट 2 सर और 3 यहाँ के पे बीच आपने वो स्मॉल एच क्या लिया, स्मॉल एच? Yes sir. हाँ, एरिया छोटा है इसलिए जो है ये वाली वेलोसिटीज 1 की 2 की जो है वेलोसिटीज बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल। स्मॉल एच वो डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम में दिया है। ओके, नेक्स्ट पेज पर डायग्राम। वो ओके सॉरी सर। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक L दिया हुआ है और ना ये वाला H है। अब बर्नौलीज आप लगाओगे जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड, बिकॉज ये रोटेटिंग फ्रेम है, तो जो है जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड में सूडो फोर्स तो आएगा, लेकिन सूडो फोर्स का वर्क डन dx बहुत छोटा है ना, तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे ले लेंगे प्लस रो बाई 2 v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2 इज इक्वल टू p3 प्लस रो बाई 2 v3 स्क्वायर प्लस रो जी h3। इसको रेफरेंस लाइन लेंगे, ये रेफरेंस लाइन लेते ही 2 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी चली जाएगी। अब जो है 3 का प्रेशर इज P0, 2 का प्रेशर यू जस्ट P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 L स्क्वायर माइनस L माइनस H का होल स्क्वायर। V2 छोटा, अब जो है यहाँ पर हाँ V2 ये वाला पॉइंट V2 छोटा है, इसका स्क्वायर तो आपने किया और रो बाई 2 V3 स्क्वायर। So, since the velocity inside the fluid is very small and V3 is very large, so relative to the tube, V3 will almost be the same, right? Relative because the to question tube, is yes. asked relative to the tube. Yes. Okay, sir. लेकिन उसमें क्या होगा, H भी चेंज होते जाएगा ना इस इंस्टेंट में, अलग अलग H पे अलग अलग आएगा ना। So could you explain the first equation? फर्स्ट इक्वेशन, हाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया हमने, पहले तो 3 पॉइंट सेलेक्ट किए 1, 2 एंड 3। 3 इज जस्ट आउटसाइड, 2 इज जस्ट इनसाइड। तो कंटिन्यूटी अप्लाई किया, जो भी मास यहाँ से जा रहा है वो यहाँ से गुजर के यहाँ से बाहर आ रहा है। So I got that the P2 is equal to P0 plus. Yeah. इसमें जो है we have done in pressure inside rotating fluid, P2 is P1 plus rho omega square by 2. So why did we take that for like a dynamic fluid? But is it because the velocity is very less? Yes, because here the velocity यहाँ पर जो है ये fluid particles की velocity relative to the pipe is very less, so we treated them as a static. Okay sir, got it. Because orifice बहुत छोटा है ना। हाँ, ये काफी छोटा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटीज होंगी। यस सर, समझ गया। सर हमने जो वेलोसिटीज फाइंड की वो विद रिस्पेक्ट टू द ट्यूब है या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली वेलोसिटी है? नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब, विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब। तो फिर क्या होगा, जैसे ये पानी से ऐसा बाहर निकल रहा है तो उसके पास 2 वेलोसिटी होगी ना, एक ये वाली होगी, एक टेंजेंशियल भी होगी। अच्छा यस सर, हाँ बराबर।
Oh, Ashok, how did you do this one? So just one doubt, तो आपने जो point 2 लिया है वो just inside the column है ना? Correct. अभी सर उसका distance L minus H है. जस्ट ये इनसाइड है, हाँ ये सभी इसका जो है यहाँ से रेडियल नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन में रेडियल डिस्टेंस लिया जाता है, like radial समझ गए. Okay. आयुष, हाँ, how did you do? Sir, I took the variation of pressure with the length of the rod and then solved using calculus. हाँ यही तो हो गया ना, यही वाला मेथड आएगा फिर तो. Yes, sir. I just had to take dr and had to integrate that instead of this. तो डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन डायरेक्टली यूज नहीं किया आपने. ओके. Yes, sir. ओके. सर नेक्स्ट सम में क्या करना है, मतलब लाइक समझा नहीं क्वेश्चन. ओके वाले नेक्स्ट वाला क्या दिया, डेमोंस्ट्रेट दैट इन द केस ऑफ अ स्टडी फ्लो. ओके, वो बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करने का बोल रहा है क्या? दैट इक्वेशन, दैट वाला क्वेश्चन बोल रहा है क्या? हाँ सर 1.325. तो हाँ बर्नौलीज सर उसमें किसी इक्वेशन 1.7a की बात की गई है सर, वो कौन सा इक्वेशन? 1.7 तो बुक में दिया रहेगा ना सर. आई थिंक वो हाइड्रोडायनेमिक्स के स्टार्टिंग में वो एक मतलब एक समरी ऑफ फॉर्मूला होता है ना सर, उसमें होगा. हाँ. लेकिन ठीक है, वो वाला मत करो, ठीक है, वो अपने में है. तो वो कौन सा फॉर्मूला एक बार बता सकते हैं? 1.7a इसमें लिखा है रो इंटू dv by dt इज इक्वल टू f माइनस क्या ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर लिखा है यार इसमें. सर तो हायर कैलकुलस है राइट सर? ये अपने में नहीं है. हाँ ओके सर. चलो ठीक है, नेक्स्ट करो फिर. 1.326 तो टाइम हो रहा है क्या? ठीक है. सर यहाँ पे आपने वो सूडो फोर्स के बारे में क्या बोला था? नहीं, हाँ देश ये जो है मैंने क्या लिया कि अगर मान लो बर्नौलीज हम लगाने जाएंगे इसके और इसके बीच में, तो सूडो फोर्स का भी वर्क डन लेना पड़ जाएगा ना. ये फोर्सेस में जो है रियल फोर्सेस के अलावा फिर हमें क्या कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, राइट, वेलोसिटी ऑफ द जो फ्लूइड कमिंग आउट विद रेस्पेक्ट टू दैट. तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स का भी वर्क डन लेना पड़ जाएगा. अशोक शायद उसी से किया अशोक ने, तो सूडो फोर्स का वर्क डन लेना पड़ जाएगा. इसलिए मैंने क्या किया, 2 पॉइंट्स ये सिलेक्ट किए, जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड वाले. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सूडो फोर्स का वर्क डन डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो सूडो फोर्स का वर्क डन नहीं आ रहा है. लेकिन इफेक्टिवली जो प्रेशर है, प्रेशर में प्रेशर कैलकुलेट करते वक्त वो वाला टर्म उसमें आ गया, राइट. प्रेशर तो लेकिन लॉन्ग पीरियड टाइम में तो फिर हो जाएगा ना 2 और 3 के बीच में. 2 और 3 में 2 और 3 में हाँ 2 और 3 ज्यादा बड़ा लोगे तो यस, तो फिर आ जाएगा. नहीं ज्यादा टाइम पीरियड में देखेंगे तो फिर हो जाएगा ना ज्यादा टाइम में. लेकिन ये तो बहुत ही जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड है ना. तो dx वर्क डन जो होगा सूडो फोर्स का वर्क डन fdr, f सिग्निफिकेंट है लेकिन dx नेग्लिजिबल है. अच्छा, इसलिए हमने वाला हटा दिया. लेकिन इफेक्टिवली फिर सूडो फोर्स ले रहे तो ये वाला यहाँ पे तो ये टर्म आ ही गया ना, ये वैसे ही उसी से आया ये रिलेशन. Sure. Sir, actually, sir, I wanted to ask that what was the logic behind taking point 2 and 3 like as two separate points on the opposite sides of orifice with like almost close to each other? वाला जो है देखो ये ऐसा है. तो ये जो लाइंस है ये यहाँ से ऐसे पूरे ऐसे बाहर निकल रही है, राइट, ऐसे बाहर निकली. तो अब क्या है, हम जस्ट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेंगे जब बाहर, है ना. तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड कैसे डिराइव हुआ है, वर्क रेडी थ्योरम. यहाँ पर स्पीड कैसे निकाल, किसके रिलेटिव टू द ट्यूब निकाल रहे हैं, बट ट्यूब इज रोटेटिंग है तो मतलब उसमें सूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा. तो जो आप बर्नौलीज इक्वेशन में प्रेशर ग्रेविटी का फोर्स का वर्क डन लेते थे, यहाँ पर एक एडिशनल फोर्स सूडो फोर्स का भी वर्क डन आ जाएगा. लेकिन हमने क्या किया,
पॉइंट ये वाला और ये वाला सिलेक्ट कर लिया, सूडो फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है dx, तो उसका वर्क डन जो है इनसिग्निफिकेंट हो गया, तो बर्नौलीज इक्वेशन में हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। Got it, sir. Thank you, sir. ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ यस असमी, हमारा डाउट कहाँ, प्लीज टेल। हाँ 3 to 6 आप अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ना? कौन सा वो 3 to 6 1.326 3 to 6 गाइस आप लोग ट्राई करो, फिर अपन नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे बाद में। सर 3 to 6 एक्चुअली बुकलेट का भी एक सम है, सर वो पे बुकलेट डिस्कशन करेंगे तब भी आ ही जाएगा। यस सर, और सर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। यस सर। 3 to 7 का डायग्राम बना सकते हो, वो स्लिट कैसा होगा वो समझ में नहीं आ रहा। Okay, one minute. Let me read the question. The side for the vertical symmetrical height edge. The narrow slit vertical down the way from the bottom of the vessel. Oh, ऐसा है। इसमें जो है, can I will erase this one. इसमें जो है, suppose you have a cylinder. तो ये ऐसा, say you have a cylinder, और ये सिलेंडर ऐसा है, and what you have done is ये पूरा सिलेंडर पैक, तो आपने क्या किया, यहाँ से इसमें ऐसा स्लिप कर लिया, ऐसा ये बीच में ओपनिंग है वर्टिकल सिलेंडर, एंड ये वाला फ्रंट ओपनिंग है, इतना पार्ट राइट फ्रॉम द बेस, ऐसा दिया है ना साइड, कहाँ से दिया है, has all the slit all the way down, running all the way down to bottom of the vessel ना। हाँ एक टॉप से ऐसा ना, यहाँ से इधर तक है ना ऐसा। ओके सर, आई थिंक आई गेट इट नाउ। हाँ तो ये जो थिकनेस है, अभी आप क्या करना, इसको कई सारे विंडोज बना लेना, यहाँ पर कई सारे विंडोज, एंड द एरिया ऑफ ईच विंडो विल बी ये थिकनेस इनटू dx। अब कई सारे विंडो से क्या हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है, कई सारे विंडो से पानी बाहर आ रहा है। अब उसके बाद अब फिर उससे जो है अब यू नो हाउ। हाँ सर हो जाएगा। ओके असली देयर वेंचुरी मीटर का उसका डाउट था, प्लीज टेल मी। Sir, I checked the notes and passed out lectures and I got the answer. Okay, thank you, sir. सेटअप में तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर, yeah. ओके ठीक है, चलो ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, we will continue Friday guys। हाँ फ्राइडे को जो है, वैसे guys you are able to complete ना booklet? हाँ सर। Till exercise 4 done sir। HCV yet to complete sir। HCV ठीक है गाइस, HCV ना इसके बाद कर लेते हैं, आफ्टर TWT, ये थोड़ा सा पहले कर लेना चाहिए था। यस सर, नेक्स्ट वीक में एक्सरसाइज 4 का हाफ हो गया और HCV पूरा कंप्लीट है, बस वो आज खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। Sir, in the doubt lectures, have you discussed whole of exercise 5 or something is left? Because I have some doubts. Okay, नहीं पूरा नहीं हुआ है शायद। Tomorrow you will take exercise 5? हाँ जो डाउट लेक्चर में वी कैन। यस ओके सर, ओके थैंक यू। यस हाँ तो श्योर ठीक है जानवी, हम जो है रिमेनिंग अपन वाला कर लेंगे, और TWT के लिए उतना वरी मतलब, ये थोड़ा मतलब रीडो के क्वेश्चन टफ है, TWT में तो नॉर्मल ही आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Thank you guys. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.